Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 12 of Modern History series. And what we will be doing today, covering mainly the Governor Generals, all these Hastings, Amherst, Bentinck, Metcalfe, Auckland, Ellenborough and Hardinge. And I'll just say one thing, if you have not listened to the lectures earlier, please listen to those lectures also. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं सुने आप उन्हें सुनिए जाके दोबारा, और अगर आपको नहीं याद है फिर भी उन्हें पहले सुन लीजिए. आज का लेक्चर थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा लंबा भी होगा, सो यू नो बियर विद दैट एंड लेट्स मूव अहेड नाउ. सो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज. अभी ये चीज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग वंस, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट इट अगेन ओवर हेयर. सो लेट्स सी कि होता क्या है. तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कैसी रही हैं. पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी टिल 1765 था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. दीवानी राइट्स ऑफ बीबीओ उनको 1765 में मिले. ये प्रिंसेस के साथ लड़ते थे और उनके एक दूसरे की हेल्प भी करते थे अगेंस्ट ईच अदर. वी हैव डन दिस. Then where I left in the last lecture was policy of ring fence. I completed the policy of ring fence in the earlier lecture, and that finished off at 1813 when we finished off Lord Minto 1, right? That was in 1813. So we move ahead. In that we discussed the policy of creating friends so that British don't have to come forward with their resources, and we know that Awadh was ring fenced. Then we will be covering this policy of subordinate isolation. This is 1813 से 57 तक, and today we'll be covering Governor Generals up to 1848. So whatever we do today, lecture number 12 is all about policy of subordinate isolation. Now we'll be talking about doctrine of lapse. Indian states separated, isolated and subordinate. We'll be talking about that. Doctrine of lapse actually comes with mainly with डलहौजी, जो बाद में जाके आएगा हम देखेंगे उसके, हालांकि वो पहले ही शुरू हो जाता है टू सम एक्सटेंट. फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन विल कम, विच विल बी डन फ्रॉम 1857 टू 1935. आई एम गिविंग यू ओवरऑल व्यू ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड देन ऑल प्रिंसली स्टेट दे आर ब्रॉट इनटू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर 1935. एंड फाइनली देयर इज पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन एट 1935 टू 47. यहां से आके ब्रिटिशर्स पीछे होना शुरू हो गए हैं. आप देख सकते हैं इससे पहले क्या हो रहा था, वो हमारे ऊपर ही सर पर ही चढ़ते जा रहे थे. और ब्रिटिश प्लान टू मेक इंडिया फेडरेशन विद इक्वल पावर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि हम इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे थे इक्वल फेडरेशन क्रिएट करके. और बिफोर आई मूव अहेड विद टुडेज लेक्चर ऑल द गवर्नर, आई विल क्विकली रिमाइंड यू ऑफ 3 generations of British powers. We have already discussed it once, and the first generation is of that of Lord Clive and Warren Hastings, right, and in whose time the foundations of the British Empire were laid. And second came Cornwallis, Wellesley and Hastings, right? These are, we have talked about them in detail. Period of final war with Mysore and Maratha, it all ended with annexation of Bombay in 1817 and capture of last of Peshwa. We'll be doing Hastings, don't worry about him. And then comes the third one, which is general generation of peace and administration comes here. We'll talk about Munro, Elphinstone, Bentinck, and especially with this guy Bentinck, about him a lot was said. Lord Macaulay, इसके बारे में भी आज ही हम पढ़ेंगे. And it all ends with the arrival of Lord Auckland. औखा मतलब मुश्किल, पंजाबी का वर्ड है औखा, एंड बेसिकली ऑकलैंड सबको परेशान कर देगा, तंग कर देगा in 1836, and accession of Queen Victoria in 1837. All this we will be talking about in today's lecture. Now let's start with Lord Hastings. He rules from 1813 to 1823, and as I said, we'll be talking about Amherst, Bentinck, Metcalfe and Auckland, and Ellenborough also, right up to Lord Hardinge. So about Hastings, he is also known as Lord Moira. इसका दूसरा नाम था, सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर था इसका. पर आपको क्या पता है कि who had the longest tenure? ये Hastings are obsessed with the longest tenures. Warren Hastings had the longest tenure. This guy had the second longest tenure, right? Now moving ahead, he renounced the policy of non-intervention. Before this, what were Britishers doing? They were not interfering into the internal matter, but here onward they were interfering only to limited extent. Now they were interfering directly, not indirectly, into the in local states over here, right?
they did not follow policy of renunciation. What is this policy of renunciation which Hastings did not follow? Renunciation matlab, see, whatever is already continuing, you finish that off, खत्म कर देते हो आप, ठीक है, जो चल renunciate कर देते हो. So two wars were going on before this, right? Now he didn't follow policy of renunciation. He didn't end those war. He let them continue, right? To end already continuing war, which were continuing. He let them continue, ठीक है? Or because he did not follow this policy, and this policy means that to end the war, so he did let them continue, ठीक है? Then comes policy of subordinate isolation is the main focus, which Hastings से लेकर right up to Dalhousie, this remains. And so let's talk about the first thing. A great thing brought by him was the Charter Act of 1813. This person sitting over here, this is Napoleon. Napoleon creates lot of problem for everyone over here. What problem is created by Napoleon? Actually, what happens that Napoleon says to Britishers that you cannot do no trade. He's telling them, this is dollar, right? You no trade by you in USA or in Europe. Sorry, not USA, in Europe. British goods cannot be traded in European part. Now, because of this, there was lot of losses to the Britishers, and also there were other Britishers who were wanting entry into Asia because they were having huge profits. So number one problem created is this, and number two is other British companies who want to come to India, right? These two things. दो लोग हैं, एक तो नेपोलियन ब्रिटिशर को करने नहीं दे रहा बिजनेस, नंबर वन, कंपनी को लॉसेस होने शुरू हो गए हैं. अगर कंपनी, इससे क्या होता है, दिस लीड टू लॉस बाय कंपनी. इससे क्या होगा, अगर कंपनी का लॉस होगा, बिकॉज lot of shares of this company were held by British, including parliamentarians, right? Right? So अगर इनका लॉस हो रहा है तो फिर पार्लियामेंट लॉ चेंज कर देगी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. दे चेंज द लॉ इन शेप ऑफ 1830. मोरओवर देयर वाज अदर्स प्रेशर. दे वर सेइंग दैट वी आल्सो शुड बी डूइंग ट्रेड विद इंडिया. व्हाई शुड ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी हैव ऑल द प्रॉफिट? So they say this problem is created, right? Now, because of this, the monopoly of East India Company, which we of course read in 1793 Act, that Charter Act, that it was continued, right? Now that was removed, but they still had monopoly over two things. And one was, see, this is a very important question, and it has been asked many times in paper. So what were those two monopolies they still had? One was tea in India, right? This is number one. Number two, trade with China. This is what were they continuing, right? Now, for the first time, the constitutional position of British territories in India was defined. There's nothing much to know in it. Promotion of moral and religious movements. Christian missionaries they started sending. More people were permitted to go to India as Christian missionaries, and so they could promote the religious movement and convert people to Christianity. And company debt was reduced to a certain extent. It had to be reduced under Charter Act of 1813. And sum of 1 lakh rupees was kept for promotion of literacy and scientific education in British India. लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये बात जान के कि कैसे ये पैसा कभी खर्च ही नहीं किया गया था. Nothing much to explain in that. Now let's talk about the wars that this person fights. There were certain developments in Afghanistan. We'll be discussing all those Anglo-Afghan wars when I discuss the foreign policy of Britishers. I'm going to do a different chapter of this. So uske andar I have discussed these Nepal, Afghanistan, Burma. I have done all over there with maps and everything. Now, Anglo-Nepal War 1814 to 16 अगर बात करें, गोरखा वॉर 18 जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में I'll give you small detail. Obviously we'll be doing it in that chapter, foreign policy after 1857. Now basically what happened that Britishers asked commander नेपाल का, जिनका नाम था अमर सिंह थापा, and to speak you agree to whatever we say.
And this war, obviously war happened, and this ended with the Treaty of Sagoli. This word is important here, that's why I've written. And again, Britishers got some hill station like Ranikhet, Sikkim, they came to us, right? Now what happens after that? Third Anglo-Maratha War, 1817 to 18. Earlier wars were Marathas, we know the 1786 to 82, and then that 1803 war. Now this was the final war of Anglo-Maratha. There were no more wars, very fierce wars. We have done this already in detail. There was one point left there. वहाँ पर मैंने I have added an annotation also over there regarding Pindaris, but I'm mentioning it again over here because I have an opportunity to talk about Third Anglo-Maratha War. Pindaris, now who were they? They were irregular forces. They consumed an intoxicating drink called Pinda, and they would appear suddenly. And क्या होता था, आते अचानक से सब resources लिए, and what will happen? They will put their blame on the Marathas, on the so using this pretext, British would always fight Marathas. वैसे ये लूटते थे, नाम इनका मराठा का लग जाता था, दे वुड ऑलवेज बी फाइटिंग, ऐसे छुट पे इनका चलता रहता था. पिंडारीज इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट एज सच, लेकिन यू शुड बी नोइंग अबाउट देम. खैर, so what else at time of Hastings? So we talk about Rayatwadi system at Hastings. We already done permanent settlement system. This is another system, Rayatwadi system. Please remember this. After this, there will be just two systems left. I will be talking about them in another lecture. For example, I've already talked about Ijaredari system, permanent settlement system, Rayatwadi system. So there is one more system, Mehelwadi system, and there are one or more system we will be talking. But here we talk about Rayatwadi. So it's a land tenure system. Basically, it was introduced by Thomas Munro and Reed. You remember these two names; they are important. Now, what happened that in South India, what was happening that Britishers thought that because there are no zamindari estates, so there is no point that we introduce zamindari system. We have done the zamindari permanent settlement system. You should know that, right? So उसके अंदर क्या होता था कि now they thought let whatever already is there, according to them, their version of Rayatwadi was same what was already happening in South India, and basically these Bombay over here and this Madras presidency, right? So this is what they were talking about. Now settlement was to be made directly with the cultivator. जो किसान कल्टीवेट करेगा चीज को वही सीधा पे करेगा. ये परमानेंट नहीं था ऑब्वियसली, यहाँ मैं पहले बता चुका हूं. एंड रेंट्स जो थे यहाँ पर हर 20-30 साल बाद रिवाइज किए जाते थे. लेकिन व्हाट हैपेंस दैट जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दे डिस्कवर दैट ऑल्दो यहाँ पर क्या होता है कि उनके बीच में जमींदार नहीं होता, लेकिन सब जमींदारों का बाप, सबसे बड़ा जमींदार, द जाइंट जमींदार, द ब्रिटिश वहां पर बैठे हैं. द ब्रिटिशर, द जमींदार ऑफ ऑल जमींदार इज सिटिंग देयर ओवर देयर हेड. Now, Rayat's right of ownership were negated for 3 reasons. Now, these people over here, who were having their rights of ownership, these Rayats, they were not given the ownership. Why? Because land rent revenue was exorbitant. Their land revenue was so huge that they could not pay. The land was taken away. Then government retained the right to enhance the revenue as well, because government is having the right to revenue. Obviously, they are the owners. And third thing, Rayat had to pay revenue even when the yield was low because of droughts or floods. कि government का जो right है revenue जिनसे किराया लेने का, अगर मैं बिल्कुल crude words में कहूँ, वो confirmed है, तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं. ठीक है जी. इसीलिए जो Rayat का ओनरशिप का राइट था, इट वॉज नेगेटेड. फिर इसके बाद क्या होता है, अब हेस्टिंग्स के टाइम पे और क्या चीजें आई. हेस्टिंग के टाइम पे और चीजें आई, जैसे लॉटरी कमेटी वाज देयर, राइट. मनी फॉर टाउन प्लानिंग वाज गिवन, बट see Britishers की प्रॉब्लम क्या है, they would allocate money at times. For example, we read just about 1 lakh rupee was given for education system, but it was never used. So ऐसी ऐसी चीजें होती हैं. कॉफी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट फोर्ट ग्लॉस्टर इन बंगाल, एंड आपको पता ही है ब्रिटिशर्स आए, चाय लाए और हमें चाय का आदी बना गए हैं. और फर्स्ट टाइम इन असम यहाँ पे टी वॉज स्टार्टेड. एंड्रयू चार्ल्टन इज एन इंपॉर्टेंट नेम हियर, यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, एंड्रयू चार्ल्टन. This is an important name. He helped in discovery of tea plantations in India. So what next? So period is also known for his administrative measures. Hastings ने यहाँ पे कुछ administrative measures लिए थे. We will talk about them. Atmiya Sabha was started by Raja Ram Mohan Roy over here. He wrote a book, a gift to monotheists in 1809, Percepts of Jesus in 1820. हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में अलग से काफ़ी डिटेल में भी बात करेंगे, so don't worry about it. I just wanted to bring it over here because this is happening during the time of Hastings. Although gift to monotheists, right, it was earlier, and Percepts of Jesus was 1820.
So that's why I'm talking. Atmiya Sabha was started by him, but we'll be talking about Raja Ram Mohan Roy in detail. And Singapore was founded at his time 1818 के अंदर. एक random fact है वो, nothing much to do about it. And limited freedom to press was introduced by Hastings. We will see it is not that that Hastings के टाइम पर Hastings is not known the liberator of Indian press. It is the Metcalfe whom we will be talking today. But Hastings also introduced certain freedoms. This can be a question in paper because of this confusion generally happening. Now he gave limited liberation, थोड़ा सा दिया, but he kept कुछ, फिर भी कुछ conditions इसने रखी. कंपनी की policies को आप न्यूज़पेपर में publish नहीं कर सकते थे. Even because of this freedom, lot of newspapers came up, and one of the important newspapers of this period was Calcutta Journal by Buckingham. This is important name over here. Calcutta Journal was started by Buckingham and it became in 1830. See, it can be assertion reasoning question also. For example, that Metcalfe gave freedom of press in India. Metcalfe is the person I'm talking about. We will be covering about him, Metcalfe. Right. Metcalfe comes quite late, actually, much late. 1835 to 36 he comes. So Metcalfe is known as the liberator of Indian press, and because of this, certain newspapers came up, including Calcutta Journal. That will be a wrong statement because the Calcutta Journal came at the time of Hastings, and that was by Buckingham. Now, Raja Ram Mohan Roy also came up with a newspaper at this time, very important. Now, this was not because of Metcalfe, this is because of Hastings, and this newspaper, Samad Kaumudi. Now, this newspaper mainly talked about anti-sati campaign, and because of this, sati system is abolished, right? Because there is so much of hue and cry against the sati system. See, Raja Ram Mohan Roy would go to funerals and, ask people there that don't burn the girl and such things. He used to do unimaginable things. जाता था शमशान घाट में, लोगों कहता था ये क्या कर रहे हो, सती मत करो. लोग उसको मारने को दौड़ते होंगे, लेकिन फिर भी उसने अपोज किया. लेकिन सती सिस्टम इज अबॉलिश्ड, राइट? और डू यू नो हु अबॉलिश्ड सती सिस्टम? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस गाय, बट लेट मी टेल यू हिज नेम. हिज नेम इज लॉर्ड बेंटिक. एंड लॉर्ड बेंटिक वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1828 to 1835. And whom are we studying at the moment? We are talking about Hastings, and Hastings was 1813 to 1823. So there will be one more person after Hastings. So इतना टाइम लग जाएगा इसको ये बेंटिक तक पहुंचने में, एबॉलिश होने में. ठीक है जी. हेस्टिंग्स के बाद आ जाएंगे वैसे एमर्स्ट आएगा, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेंटिक. सो एमर्स्ट आ गए हैं 1823 to 28. लेट्स टॉक अबाउट हिम. जो एमर्स था इसके टाइम पे एक चीज हुई, जो एंग्लो बर्मीज वॉर हुई. ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट वॉर इस टाइम पे 1824-26 में. इसकी डिटेल्स मैं अभी नहीं कवर करूंगा. आई विल बी डूइंग दैट इन द फॉरेन पॉलिसी चैप्टर एज आई सेड अर्लियर. लेकिन इसके अंदर मैं बता दूं, ट्रीटी ऑफ यंडाबू की वर्ड है एंग्लो बर्मीज वॉर के अंदर. बर्मा सोचो तो यंडाबू अपने मन में आना चाहिए. And he did annexation of Assam, Manipur, Arakan, Tanasrim from Burma. All these मतलब ये सब तनसरम वगैरह, अराकान, हम देखेंगे कैसे कैसे ये पार्ट्स हैं बर्मा से अनेक्स होते हैं. एंड इसके टाइम पर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड विच इज नोन एज बैरकपुर म्यूटनी. बहुत सारी बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, बैरकपुर म्यूटनी. व्हाट हैपेंड दैट देयर वर नो बुलक्स इवन टू कैरी बिलोंगिंग्स ऑफ सिपॉइज ऑफ आर्मी. ठीक है. एंड ब्रिटिश रिफ्यूज दिस रिक्वेस्ट. दिस इज सिपॉइज आस्किंग कि जी हमें बाहर लड़ने के लिए लेके जाया जाए. एंड उस टाइम पे इट वाज अ टेबू फॉर इंडियंस टू गो क्रॉस द सीज, ओशंस और इवन रिवर्स एट टाइम्स टू फाइट. एंड दे सेड ओके फाइन, वी आर गोइंग, बट एटलीस्ट गिव अस सम कन्वेंस टू गो. दे सेड नो. So there was revolt led by a person called Binda. This is important name. And 200 Indian sepoys were killed. Binda was also killed, and his body was hung on a tree. And place where he was hung, there is a temple of Binda Baba. Binda Baba मंदिर है वहाँ पे. And deity of the मंदिर temple is Hanuman ji, right? Hanuman ji is the deity of that temple. And Binda की भी वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है. This is important, right? And this is like the after this comes 1857. This is much before 1857. There are small mutinies happening. Now. What is the next thing we're talking about? Right, this is clear. Now William Bentinck comes then, right? And this is the person जिसके साथ हम काफी टाइम बिताएंगे आज. William Bentinck. अब क्या होता है कि he is the first Governor General of India and the last Governor General of Bengal. What do you mean by this statement? Governor General of Bengal. क्यों यहाँ पर ऐसा क्या होगा? 1833 के अंदर यहाँ पर एक एक्ट आएगा. ठीक है जी, क्योंकि
1813 के अंदर पिछला एक्ट आया था, अब 20 साल हो गए हैं, 20 ईयर्स, तो एक नया एक्ट आएगा एंड दिस एक्ट विल मेक गवर्नर पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ बंगाल ही होता था. Now, industrial revolution was at its peak at this time, and USA in Europe, USA में सारे एरिया में, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ दिस इंडिया के बिजनेस पर असर होना शुरू हो गया. ठीक, कैसे बिजनेस पर असर? उनके पास एफिशिएंसी है, बेटर प्रोडक्शन के मीन्स हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी है, ऑल दैट. बिकॉज ऑफ दैट इंडियन इकोनॉमी इज अफेक्टेड. Now, Bentinck was earlier governor of Madras and he had seen Vellore mutiny of 1806. We talked about that in detail. Now, he had the experience of how to tackle mutinies and all those. So, there is statue of Bentinck in Calcutta and below it are words penned by Macaulay. These are beautiful words about him said by Macaulay, so I thought that I should write them as it is. He abolished the cruel rights. He effaced humiliating distinctions. He gave liberty to the expression of public opinion. His constant study was to elevate the intellectual and moral character of the nations committed to his charge. तो बेंटिक ने काफी अच्छा खासा काम किया है इंडिया के लिए. फाइनेंसेस ऑफ कंपनी की बात करें, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग, अब देखो हमने पढ़ा कि अभी एंग्लो बर्मीज वॉर भी होकर चुकी थी, ये हमने अभी ऊपर पढ़ी थी 24 से 26. अब क्या हो गया, देखो ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन. नाउ बेंटिक ट्राई टू करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग कंपनी एक्सपेंडिचर. ये कैसे करेगा? एक तो ये कंपनी का एक्सपेंडिचर कम कर देगा, कंपनी एक्सपेंडिचर. फिर एंट्री फॉर नेटिव्स टू एंटर द सर्विसेज मेड लिटल इजी. इम्पोज ड्यूटी ऑन कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम इन मालवा. ठीक है जी. तो विलियम बेंटिक क्या करेगा? ऐसी चीजें इंडिया में कर देगा ताकि कंपनी के फाइनेंसेस को सुधार सके. राइट, दिस विल बी हैपनिंग. नाउ एट दिस टाइम सती सिस्टम एंड ठगी सिस्टम के बारे में बात करेंगे. पहले तो सती सिस्टम के बारे में बात करते हैं. Sati system was already abolished in India in certain parts. For example, it was in 1515 that it was abolished in Goa by Portuguese, but its prevalence was already low in Goa. हमें पता है वहाँ पर पहले कम होता था, तो इतना कोई पॉपुलर ये वहाँ पर आइडिया नहीं हो पाया था. फिर फ्रेंच ऑल्सो बैंड इन पौंडीचेरी, ये हो गया. फिर से कैलकाटा में पहली बैन हो गया था 1798 में. फिर 1812 के अंदर राजा राम मोहन राय स्टार्टेड कैंपेनिंग अगेंस्ट सती. ही फेवर्ड abolition of sati and his newspaper, do you remember its name, which started at the time of क्या कहते हैं इसे, Hastings. It was, his name was Samvad Kaumudi. Right now, Samvad Kaumudi. For right, if you don't remember, I can just show you that quickly again. This was immersed and say here it is, Hastings, Samvad Kaumudi, if you have this image in your mind, right? So quickly move ahead. Now, what happened that, okay, here we are. So in 1829, Sati system was abolished by the Regulation Act of Regulation number 28. Now he saw brother's wife being burned, and actually में what happened, इसकी wife भाभी को इसको ऐसे सती बनाया गया था. इसको लगा था ये क्या हो गया, and he was criticized by Orthodox society for his action. He used Samvad Kaumudi, as I said, and he was first in Bengal and then slowly to all other regions. Sati was abolished in India. Right? Sati system क्या होता था, just for in case you don't know that, if the husband died, wife was supposed to also die, and she was burnt alive on the pyre by the people. और यहाँ पर आप साइड पे देख सकते हैं यही हो रहा है. ठीक है. अब दूसरा सिस्टम है ठगी सिस्टम. ठगी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, ये एक्चुअली में संस्कृत के एक वर्ड से बना है. ठगी वर्ड जो अंग्रेजी का इंग्लिश का वर्ड है, एंड संस्कृत वर्ड इज थग. थग का मतलब होता है स्लाई. स्लाई मीन्स चालू. चालू कह सकते हैं, कनिंग, बहुत चालू तेज इंसान. तो ये देर आर हेरिडिटरी बैंडेड्स, और ये हाईवे रॉबरीज करते थे, और ये पुगरी उसे कहते थे, या फिर हैंकरचीफ कह सकते हैं, रुमाल के साथ करते थे. और मिशन इस टाइम पे जिस बंदे ने ठगी सिस्टम को इंडिया में खत्म करने में हेल्प की थी, हिज नेम वाज कर्नल स्लीमैन. दिस इज इंपॉर्टेंट नेम. ये दिस हैज बीन आस्क्ड इन पेपर ऑलरेडी. एंड इन 1835 फाइनली, एंड दैट इज व्हेन विलियम बेंटिक इज आर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. राइट, पहले ही वाज ऑफ बंगाल बिफोर 1833. Thuggy and Dacoity department were created with Sleeman as its superintendent, and Thuggy system was controlled. Now, at this time a very important person came. His name is Lord Macaulay, as you can see him. This is the person who is behind IPC, CRPC, whatnot, CPC, so many things. Now, at this time, General Committee on Public Instruction was formed, which was in a way precursor to UPSC, because UPSC comes much later, not this. Real जो Public Service Commission that came in 1926.
बट सॉर्ट ऑफ अ प्रिकर्सर, बिकॉज उसका काम भी कुछ कुछ मिलता जुलता था इन रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस कि जो इंडियन सर्विसेज हैं उसके अंदर उनको इंडियनाइज करने की जरूरत है. नाउ सेकेंड थिंग, दिस जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन हैड टू ग्रुप्स, राइट. जो जनरल कमेटी वो मेड बाय मैकॉले, दो ग्रुप थे इसके अंदर. एक था ओरिएंटलिस्ट, राइट. सो दिस जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, दिस हैड टू ग्रुप्स. One was Orientalist. Now, see, basically, which Prinsep was their main leader, and the other were Anglicist. They supported that English should be the main medium of education in India, and this was the first time that English was introduced in a college in Delhi in 1828. एंड सिंस, लेकिन अब क्या होता है कि ओरिएंटलिस्ट कहते हैं इंडिया के अंदर एजुकेशन जो होनी चाहिए वो वर्नाकुलर में होनी चाहिए, देसी भाषा में होनी चाहिए, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं. और हिंदी इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, वो उर्दू, आप जो मर्जी कहिए, लेकिन नॉट दिस थिंग इंग्लिश. और इंग्लिश उल्टा कहते थे. सो आपस में मैटर डिसाइड नहीं कर पाए तो मैकॉले के पास चले गए. जब मैकॉले के पास चले गए तो 1835 के अंदर कमेटी ऑन, उसको प्रेसिडेंट इसलिए बन गया था इसका. तो डिसीजन लिया गया कि इंडिया के अंदर वॉट एवर द एजुकेशन विल बी ऑन साइंटिफिक लाइंस, नंबर वन. Number two, mode of education will be English, and thus we are studying this in English today. And hence, father of Western education in India becomes Lord Macaulay. He was also made the head of the Law Commission in 1833, and which ultimately led to passing of IPC and then CPC and then CRPC on Western lines, and judicial integration of India अब हो गई क्योंकि सबके लिए common laws आ गए, IPC, CPC, CRPC जैसी चीजें आ गई. बेंटिक को छोटा मोटा मत समझ लेना गलती से भी, बिकॉज इसने बहुत कुछ किया. ही इज नोन एज द फादर ऑफ द वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन इन इंडिया. क्यों? इसने इंडिया के फादर ऑफ वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एंड देन फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वॉज स्टार्टेड बाय हिम एंड लेटर ही जॉइंड विद कैलकटा यूनिवर्सिटी. ठीक है जी. और जो ये मेडिकल कॉलेज था. Now all this led to मेडिसिन बेस्ड ऑन एनाटमी एंड डायग्नोसिस विच चेंज इन पीपल्स थिंकिंग. लोगों की विचारधारा बदल गई. अभी तक क्या होता था, देसी नुस्खे हो रहे थे जो कि ना इतने परफेक्ट थे ना ही इतने बुरे थे, अपने आप में कंफ्यूजन थी उन्हीं को लेकर ही. तो अब वो सोल्यूशन उन चीजों का हो गया. नाउ इफ अ पर्सन वाज किल्ड देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ पोस्टमार्टम. इससे पहले पोस्टमार्टम ही नहीं होता था, विच वाज अगेन एन इशू इन इटसेल्फ. सो अब तक अगर हम देखें कलकत्ता के अंदर कितना कुछ बन गया. हमने पढ़ा था जी आलिया मदरसा 1781 में, एशियाटिक सोसाइटी पढ़ी थी 1784 के अंदर, फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा था हमने 1800 के अंदर, एंड नाउ कम्स द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया. हम ये भी पढ़ेंगे कैसे जॉनथन डंकन ओपन संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी इन 1791. तो कुछ लोग पता नहीं इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आया है. So I thought कि आपको मेंशन करूं, संस्कृत कॉलेज वाराणसी था वो डंकन ने शुरू किया था, ना कि बेंटिक ने. दैट वाज 1791. जुडिशियल रिफॉर्म्स जैसे मैंने आपको कहा लेकर आया था, जुडिशियल इंटीग्रिटी हो गई थी इंडिया में. अब आपको याद होगा कि जब कॉर्नवालिस आया था, राइट, अब तब क्या हुआ था. कॉर्नवालिस का टाइम याद है आपको? कॉर्नवालिस केम एंड सी कॉर्नवालिस जब आया, that was सबसे 85 to 93, because after this came John Shore and then comes Wellesley, and Wellesley के बाद कॉर्नवालिस फिर से थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर वो मर जाएगा 1805 में. अब आएगी आपको कहानी याद. तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा they were divided into 4 divisions, each having a circuit court, and there were 4 provincial courts of appeal at DCMP, right? But now this time नाउ सिचुएशन चेंजेस. क्यों सिचुएशन बदल गई? ब्रिटिशर्स का एरिया बढ़ गया, एनेक्सेशन हो गई एरिया की, बहुत सारे एरिया इनके पास आ गया. प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील जो इन्होंने बनाई थी वो इफेक्टिव नहीं थी. पूरा सिस्टम बहुत महंगा था, क्योंकि देखो क्या होता था, जो सर्किट कोर्ट होती थी ये हर रोज नहीं बैठती थी. एक ही कोर्ट होती थी, वो कभी यहाँ पे अलग अलग एरियाज में जाके बैठती थी, कभी ढाका में, कभी रहे मुर्शिदाबाद में, पटना में, तो अलग अलग जगह वो जा रही थी. पूरा का पूरा सिस्टम था जो वो बड़ा ही एक्सपेंसिव था. दैट इज कैलकाटा. नाउ लैंग्वेज ऑफ जो कोर्ट थी वो पर्शियन थी और लिटिगेंट्स उसको समझ नहीं पाते थे. तो फिर अब किया क्या जाए. ही अबॉलिश द कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट उसने अबॉलिश कर दिया, एंड गॉट कमिश्नर रेवेन्यू एंड सर्किट इंस्टेड. एंड ये इसने कर दिया, ठीक है जी, कि प्रोविंशियल कोर्ट को और सर्किट कोर्ट बंद की, क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं थी, मतलब महंगा पड़ रहा था, लैंग्वेज डिफरेंट था. तो देन ही सेपरेट सदर दीवानी एंड सेपरेट निजामत अदालत वर ओपन एट इलाहाबाद. ठीक है जी. ना ऑल दिस लेड टू, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे एक्सपेंडिचर कम हो गया जी. एक तो ना एक्सपेंडिचर
पुलिस का ऑपरेशन भी कम हो गया क्योंकि केस जल्दी डिसाइड हो रहा है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कमिश्नर्स की। ज्यूरी सिस्टम आया था इस टाइम पर बंगाल में, जिससे लोकल नॉलेज का यूज होना शुरू हो गया। एंड टू सम एक्सटेंड इंडियंस अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गए एक तरीके से, कुछ हद तक तो आने शुरू हो गए, चाहे मिनिमम लेवल पर ही आते थे वो। ठीक है जी। फिर विलियम बेंटिक की अब आगे बात करेंगे। तो क्या हुआ कि इसने कुछ एनेक्सेशन अगर विलियम बेंटिक के टाइम पर देखें वो क्या हुई, वो एक तो मैसूर इसने कर लिया, दूसरा चचर एंड जयंतिया हिल्स, एंड तीसरा जो था वो था कुर्ग, इसने अनेक्स कर लिया था। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये बात। एमसीसी और मैसूर, चचर एंड जयंतिया हिल्स एंड कुर्ग इसने अनेक्स किया था। फिर अब आपको मैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बताऊंगा, बट बिफोर आई टेल यू अबाउट चार्टर एक्ट 1833 लेट्स रिवाइज द कंपनी स्ट्रक्चर, बिकॉज अभी मैं कुछ ये वर्ड यूज करने वाला हूं। सबसे ऊपर होते हैं शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर्स जिनके होते हैं, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच। फिर देन शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे अपॉइंट कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, राइट, basically they become the court of proprietor. All the shareholder together are called court of proprietor, and these court of proprietor will choose the court of directors which were elected by court of proprietor on annual basis. Now और ये जो डायरेक्टर होते थे ये अलग अलग कमेटीज बनाते थे डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, और इन सब के नीचे होता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है जी। तो अभी दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम से पोस्ट बन गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है जी। और जो विलियम बेंटिक था ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट ही टॉक्स अबाउट इज ओवर हियर इट इज सुपरिटेंडेंस, यू कैन सी द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल। जब हम पॉलिटी के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो तब भी वहाँ पर यही हो रहा होता है कि उसके काम क्या होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, तो अब भी यही चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो और इस टाइम पर क्या हो रहा होता है कि अब मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बिकॉज इस एक्ट को कंफ्यूजन हो जाती है लेकर कि किस टाइम पर कितने मेंबर्स थे, तो मैंने इसको एक चार्ट की शेप दे दी है। तो रेगुलेशन एक्ट के टाइम पर 5 मेंबर आए थे इनिशियली, फिर पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर 3 हो गए, चार्टर एक्ट से उनके अंदर कंफर्म कर दिया जाता है कि जो गवर्नर जनरल होता है ही इज अ पावर ऑफ ओवर रूलिंग द 2 मेंबर्स, एंड चार्टर एक्ट 1813 से कुछ नहीं होता, 3 मेंबर कंटिन्यूड रहते हैं। एंड चार्टर एक्ट 1833 से ये 3+1 4 मेंबर्स हो जाते हैं। चौथा मेंबर एक लेजिस्लेटिव मेंबर होता है जो कि सिर्फ तब काम आता था जब लॉ बनाना होता था, एंड वो इस टाइम पर कौन होता है, वो बनता है लॉर्ड मैकॉले। चार्टर एक्ट के बारे में और बातें बताऊं, दिस एनहांस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कैसे वो कोई भी लॉ को रिपील, अमेंड या ऑल्टर कर सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, देखिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो जो 24 होते थे, दे वर एक्टिंग अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड हैड द पावर टू वीटो अगेंस्ट गवर्नर जनरल। ठीक है जी, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर हो जाती है। अब जो स्प्लिट इन बंगाल होता है, देखो एक्चुअली में ये प्रोविजन कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर प्रपोज जरूर किया जाता है। वो क्या चाह रहे होते हैं कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम होती है इतनी बड़ी होती है, आगरा तक होती है, तो अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा बना दो, एक उसको प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम रहने दो, लेकिन ये चीज कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होती है। फिर क्या होता है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज यहां से शुरू हो चुकी है। जितने भी इंडिया के अंदर लॉज होते हैं अब उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे ले किया जाएगा, उनको एक्ट कहा जाएगा। और जो कोडिफिकेशन के लिए जो लॉज हैं, गवर्नर जनरल वाज आस्क्ड टू मेक इंडियन लॉ कमीशन, इसको करने के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन इस टाइम पर आता है अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इट इज सेट अप एंड लॉर्ड मैकॉले। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी। जब आप पॉलिटी का आंसर लिखो, इफ देयर इज अ शॉर्ट नोट ऑन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यू कैन बिगिन विद द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज सेट अप अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लॉर्ड मैकॉले एज इट्स चेयरमैन। एंड इसके जो बाकी लोग थे वो कौन थे, दे वर CMAM। CM मतलब कैमरून McLeodganj, you might have been there, it's a hill station. And then Anderson was there and McNaughton was there. The last one, he refuses the appointment, right? और जो लॉ स्टूडेंट्स है वो मैकनॉटन रूल्स के बारे में भी काफी अच्छे से पढ़ते हैं। खैर एनीवे विल मूव अहेड, दैट इज यू डोंट हैव टू नो दैट। Then we talk about Indians in civil services. Now, first time that it was a law come that which admits Indians freely to civil services. प्रैक्टिकली तो ये सिर्फ पेपर पर ही होता था, इंडियन अल्टीमेटली कोई आ नहीं पाए थे। स्लेवरी अबॉलिश हो जाती है, मतलब सजेस्ट किया जाता है, होती नहीं है यहाँ पे अभी। मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गवर्नर जनरल शिफ्ट हो जाती है, राइट, ठीक है जी।
उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की, लेकिन इसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स अब इसको मिल तो गई हैं, लेकिन उसके अंदर वो कुछ चीजों पर बेस्ड है। एक है रूल ऑफ लॉ, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ, कानून का राज, गुंडा राज नहीं, कानून का राज, द रूल ऑफ लॉ। और अब एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी वो लॉज के ऊपर बेस्ड होती थी, क्लियरली डिफाइंड जो लॉज होते थे जो बताते हैं किसकी क्या राइट्स हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अदर्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कैप्रीज और द पर्सनल डिस्क्रिशन ऑफ द रूलर। नंबर 1 है। दूसरी बात, लेकिन प्रैक्टिकली आर्बिट्रीनेस तो फिर भी रही, और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बेसिस पे उसके पास पावर थी। हुए इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, वेदर यू आर अ प्राइम मिनिस्टर और अ पीएन, यू आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ विल ट्रीट ऑल इक्वली. And obviously there are few exceptions. For example, diplomats have special privileges, president of India has special privileges, we talk about that in polity, but here for our purpose we say that all are treated equally. But there was one exception, Europeans in this case and their descendants, they had separate courts and even laws, they could be tried only by European judges. प्रैक्टिकली जो कोर्ट फीस थी बहुत हाई थी, ठीक है जी, प्लस लॉयर की फीस, प्लस इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस और करप्शन हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनजस्टिस हो जाता था। और प्री ब्रिटिश टाइम के टाइम पर अगर कंपैरिजन करें, उस टाइम पर जस्टिस जो था वो इनफॉर्मल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव था। अब तो जस्टिस की इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे आप नाम में ले असली में नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया सिविल आपको सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, ना कि कास्ट, कलर और क्रीड के बेसिस पे। फिर 1828 के अंदर यहां पर ब्रह्मो समाज बना दिया राजा राममोहन रॉय ने। वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राममोहन रॉय इन डिटेल, वी आर डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट हिम। एंड देन 1825 वेदांता कॉलेज वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय। एंड देन 1828 यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विवियन डेरोजियो। अभी मैं व्हाई आई एम मेंशनिंग दीज वर्ड्स ओवर हियर, ताकि आपको ना थोड़ा सा एक वर्ड्स के बारे में सुना सुना लगना शुरू हो जाए, नॉट ताकि जब हम राजा राममोहन पढ़े तो अचानक से ये क्या हो गया, ऐसा ना कुछ हो जाए। नेक्स्ट इज चार्ल्स मेटकाल्फ, विल क्विकली फिनिश दिस। इसके अंदर क्या होता है, ये है मेटकाल्फ हॉल। अब बिकॉज ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगी थी पहले, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, वेल्सले ने लगाई थी ना 1799 के अंदर, वो ये रिस्ट्रिक्शंस हटाता है। टू कमेमोरेट हिज एफर्ट्स फॉर अ फ्री प्रेस इन इंडिया, दिस हॉल वाज मेड, राइट। मेटकाल्फ हॉल है ये, कलकत्ता के अंदर है ये। एंड लेटर हम पढ़ेंगे लिटन भी आगे जाके इंडिया के अंदर प्रेस की बहुत फ्रीडम देगा इंडिया में। मेटकाल्फ वाज द एम्बेसडर, मेटकाल्फ एज एम्बेसडर वाज सेंट टू राजा रणजीत सिंह अंडर लॉर्ड मिंटो। अगर अब आपको ये बात याद नहीं है, मिंटो आपको याद है कब आया था? मिंटो वॉज हेयर फ्रॉम 1809 टू 1813, राइट, जहां से हमने पिछला लेक्चर खत्म किया था जहां पे। फिर इस क्या होता है यहाँ पे, इस टाइम पर बंगाल में कुछ एसोसिएशंस भी बनती हैं, जैसे बंग भाषा सभा, जमींदारी एसोसिएशन, ऑल्सो लैंड होल्डर सोसाइटी है। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यू शुड बी अवेयर अबाउट द वर्ड्स, एटलीस्ट सुने तो हो। तो वो मेटकाल्फ के टाइम पर ही होता है, ना क्वेश्चन जोड़कर आ जाता है। ऑल्दो क्या होगा कि जमींदारी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय दिस पर्सन, जमींदारी एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मेटकाल्फ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यू शुड बी अवेयर, राइट। अब ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फॉलीज इन अफगान वॉर्स। मेटकाल्फ ने कुछ गलतियां भी की थी अफगान वॉर में, लेकिन सबसे अल्टीमेट जो आगे परेशान करेगा इस टाइम पर ब्रिटिशर्स को, ही इज लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड क्या करता है, ही ब्रिंग्स डिसग्रेस टू इंग्लैंड। ट्राई पार्टेड ट्रीटी होती है बिटवीन शाह शुजा, रंजीत सिंह एंड ऑकलैंड, ठीक है जी। शाह शुजा ये जो थ्रोन पर बैठे हैं, रंजीत सिंह पंजाब से आए हैं, और ऑकलैंड जी जो है इंग्लैंड से आए हैं। दे सपोर्ट ईच अदर एंड दिस लीड्स टू अफगान वॉर। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो जाती है। मैं अफगान वॉर अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, लेकिन फॉर नाउ फर्स्ट मेजर लॉस ऑफ इंग्लिश होता है अफगान वॉर के टाइम पे, एंड ऑकलैंड वाज कॉल्ड बैक, ठीक है। नाउ रंजीत सिंह डाइज इन 1839 एंड खालसा अंपायर जो रंजीत सिंह जी ने बनाया होता है, इट स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज नाउ ऑन थ्रोन, 1837 ऑनवर्ड्स आ जाएगा, बहादुर शाह जफर होगा, लेकिन उसका एरिया क्या होगा इस टाइम पे, वो सिर्फ रेड फोर्ट जितना एरिया होगा जिसके ऊपर वो रूल कर रहा होगा। इस टाइम पे तत्व बोधिनी सभा, देखिए अब पता क्या चक्कर है, गवर्नर जनरल्स के बारे में रैंडम फैक्ट्स ही आते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। जो डिटेल्स आएंगी वो बाद में आएंगी जब मैं आपको सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इनकी तो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो तत्व बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये फादर और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है जी। DR डॉक्टर साहेब, DR देवेंद्रनाथ टैगोर, देन कम्स रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज डॉक्टर, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा पहले कौन आया था इन दोनों में, अगर कंफ्यूजन हो जाए। एंड जो पहले आए थे उन्होंने बनाई थी तत्व बोधिनी सभा, ठीक है जी।
नाउ पोस्ट ऑफिस वर एस्टैब्लिश एट दिस टाइम इन 1837, पहली बार इंडिया के अंदर पोस्ट ऑफिस। लेकिन असली के अंदर पोस्ट स्टैंप्स आना, ये सब कुछ होना, वो तो आगे जाकर डलहौजी के टाइम पर ही होगा। ठीक है, एलन ब्रो की बारे में बात करें, अब क्या हुआ इंडिया के अंदर पीस तो हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जब जो ये भाई साहब पहले बैठे ऑकलैंड, इन्होंने बहुत परेशानी कर रखी, ही ब्रॉट डिसग्रेस टू इंग्लैंड, यू कैन सी हियर। तो क्या होता है कि इसको कहा चलो पीस लेकर आओ, एंड लेकिन ही गोज एंड डिस्ट्रॉयज द काबुल, शहर का शहर खत्म कराता है, नेक्स्ट इज सिंध। अब अफगान वॉर के टाइम पर 1839 टू 42 जो चलती है खत्म हो जाती है। चार्ल्स नेपियर नाम का पर्सन यहां पर होता है जो सिंध को एनेक्स करेगा। स्लेवरी यहां पर एबॉलिश होती है, जिसका प्रपोजल हम अभी पढ़ कर चुके हैं कि पहले सजेस्ट हो जाता है बेंटिक के टाइम पे। नाउ इट वाज मेड इलीगल और दिस वाज काइंड ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड बेंटिक आल्सो सजेस्ट एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, से मैं पहले कह चुका हूं। ग्वालियर के साथ लड़ाई करता है, छोटी सी फालतू की बात है ये। बंगाल की फॉर्मेशन के अंदर, बंगाल में क्या होता है, बंगाल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है। इसका मकसद क्या होता है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड टेल पीपल अबाउट कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, हमें परेशान कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में। ब्रह्मो समाज इज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1843 बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, राइट। अब कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, जो मैंने पीछे आपको चीज बताई थी यहाँ पे, जस्ट आई जस्ट शो यू वन थिंग, दिस इज देवेंद्रनाथ टैगोर एंड दिस इज रविंद्रनाथ टैगोर, DR तत्व बोधिनी सभा किसने बनाई? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि कहीं आप द्वारकानाथ टैगोर से इसको कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ, इट इज देवेंद्रनाथ टैगोर, राइट। सो क्या हो रहा है, ब्रह्मो समाज भी रीऑर्गेनाइज होता है। ब्रह्मो समाज की पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब सिंध को कैसे एनेक्स करते हैं? ब्रिटिश सिंध के अंदर क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, पोर्ट था, शिप से जुड़ सकता था। एंड क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ट्रीटी करते हैं सिंध के साथ, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप 1809 में। लेकिन अंडर दिस ट्रीटी सिंध हैड टू स्टॉप फ्रेंच की प्रेजेंस इन देयर एरियाज एंड लेटर अमेरिकन वर आल्सो स्टॉप्ड। Now, Sindh was repeatedly attacked by Sikhs in the past. Sikhs चाहते हैं सिंध उनके पास आ जाए। और finally in the battle of Miani and the battle of Dobo, in which 3,000 Britishers defeat 12,000 Baluchis in 1843 under Charles Napier. नेपियर जब लड़ाई जीत जाता है तो टेलीग्राम भेजता है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नर जनरल को, पेशावी जिसके अंदर लिखा था, इट्स अ लैटिन वर्ड विच मींस आई हैव सिंड, या फिर वो कहना चाह रहा था आई हैव सिंध। ऐसे ही आपस में मजाक कर रहे होते हैं, लोग मर रहे होते हैं। खैर, सिख अंपायर अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी है 1839 में, और उनके बाद उनका बेटा खड़क सिंह आ जाता है, हु इज आल्सो पॉइजन टू डेथ, और ऐसे करके कुछ लोग मर जाते हैं, मार दिया जाता है। एंड देन कम्स हिज सन निहाल सिंह। फिर क्या होता है, धीरे धीरे डोगराज क्या करते हैं, जींद कौर को बिठा देते हैं ऑन दी थ्रोन, हु वाज वन ऑफ द विडोज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, बट शी वाज रूलिंग एज ए रेजेंट फॉर हिज सन महाराजा दिलीप सिंह, क्योंकि दिलीप सिंह जी की एज बहुत कम होती है, तो वो एक टेम्पररी तौर पे महारानी जींद कौर यहां पर बैठी होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि दिलीप सिंह की एज इस टाइम पे सिर्फ 8 से 9 साल होती है। तो हार्डिंज के बारे में क्विकली विल टॉक अबाउट है। जो हार्डिंज था, इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1845 से 46 तक, एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर यहां पर साइन हो गई थी। वीक लेटर दिस वाज फॉर्मलाइज्ड एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एंड महाराजा दलीप सिंह जो थे उनको राजा बना दिया जाता है। ही वॉज अ माइनर इस टाइम पे। ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंदर क्या होता है, सिक्स को अपना सारा एरिया लूज करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर, पार्ट्स ऑफ जलंधर दोआब, यहीं से डोगरा अंपायर की शुरुआत भी यहीं से होती है। फिर 1.5 करोड़ रुपए उनको इंडेमनिटी, जो वॉर के खर्चे ब्रिटिशर्स को देने पड़ते हैं। बहुत ही डिसग्रेस होती है ये ट्रीटी एक्चुअली, और आर्मी ऑफ पंजाब को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। कश्मीर को गुलाब सिंह जी को भेज दिया जाता है, और गुलाब सिंह जी बिकम द फर्स्ट फाउंडर राजा ऑफ डोगरा अंपायर, एंड अ ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर हेनरी लॉरेंस वाज आल्सो केप्ट एट लाहौर, जो कि पंजाब की कैपिटल होती है। हार्डिंज के टाइम पे फीमेल्स को फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म कर दिया जाता है, और गोंड्स के अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइस जो किया जाता है उसे भी खत्म कर दिया जाता है। अब मुझे पता नहीं इसको कैसे याद किया जाए, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि प्रीलिम के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और ही इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल्स, जो बाद में जाके 1857 के रिवोल्ट का एक कारण भी बन जाएंगी। ग्रीस कार्टेजेस का जो इश्यूज होता है, और इसके टाइम पे कैनाल सिस्टम को इंकरेज किया गया, क्योंकि गंगा कैनाल को बड़ा करना था। ठीक है, असली में तो काम पूरा डलहौजी के टाइम पर ही जाकर हो पाता है, लेकिन यहां से काम शुरू हो जाता है। प्रिलिमिनरी कमेटी आती है जो कि देखती है इंडिया में रेलवे की फिजिबिलिटी क्या है, वो भी अल्टीमेटली डलहौजी के टाइम पर ही आएगी। एंड इंडिया के अंदर पहली बारी हॉर्स ड्रिवन कार जरूर आ जाती है मेड्रॉस के अंदर, लेकिन रेलवे नहीं आती है। और फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के अंदर थॉमसन कॉलेज है, जिसका नाम
विद द आइडिया ऑफ इंप्रूविंग गंगा कैनाल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो डलहौजी के टाइम पर आया था। ये पेपर के अंदर एक बारी क्वेश्चन आ रखा है, देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वो हार्डेज के टाइम पर नहीं था। ठीक है जी, सो दैट्स इट, वेरी सिंपल लेक्चर, अ लॉट टू रिमेंबर फॉर यू। मेरे हिसाब से तो नोट्स वगैरह क्या बनाने हैं इसके, इसी लेक्चर को आप 2-3 बार सुनिए एंड यू विल रिमेंबर इट। ठीक है, कहीं कहीं हिंट रह जाएगा। मेंस के लिए दिस लेक्चर इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, जो लेक्चर 13 है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जाम। ठीक है, आने वाले टाइम में हम डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे, डलहौजी के ऊपर काफी डिटेल्ड है, डलहौजी मेंस प्रीलिम सब जगह आ जाता है। एंड देन वी विल, बिफोर आई टेक यू टू रिवोल्ट ऑफ 1857, मैं आपको थोड़ा सा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वो सारा एक दूंगा इसका, एंड देन विल क्विकली मूव टू द revolt of 1857. After that lectures will be coming very fast, I'm telling you, or that's it. And please subscribe to our channel for the more videos to come. You can see the subscribe button down there, subscribe जो button यहाँ पर आ रहा है, तो you can click there, and that's it. And your queries you can put in, I'll reply you sooner or later. And I just have one request, आप इसे जाइए and just share it on Facebook and Twitter once at least. That is the support for me. अब देखिए, कोई अकेडमी को 20,000 रुपए चार्ज करिए, 1-1 लाख रुपए लोगों को चार्ज कर रहे हैं, दिस इज फॉर फ्री। अब एक शेयर तो बनता है ना, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट आई हैव सम सपोर्ट, कुछ मेरे को भी तो मजा आया ना ये वीडियो बनाने में और साथ में। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।